জেলা শাসকের বাংলো থেকে দূরত্ব মাত্র কয়েকশো মিটার, তার মধ্যেই ভয়ানক ঘটনা। মাটি খুঁড়ে উদ্ধার হলো মহিলার দেহ। জিম ট্রেনারের হাতে শেষ হতে হয়েছে ওই মহিলাকে। কাজ সেরে অভিযুক্ত জেলা শাসকের বাসভবনের কাছেই দেহটি মাটিতে পুঁতে দেয় বলে অভিযোগ। এই জিম ট্রেনারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মহিলা বিবাহিত ছিলেন। তার স্বামী চান ঘটনায় সিবিআই তদন্ত হোক, কারণ তার মনে হয় এই ঘটনায় শুধু ওই জিম ট্রেনার জড়িত নন, আরও কেউ তাকে এই কাজে সাহায্য করেছে। এ নিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হবেন বলেও জানিয়েছেন। পচাগলা দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং খুব স্বাভাবিক, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যথেষ্ট পরিমাণে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কারণ যেখান থেকে উদ্ধার হয়েছে দেহ, জেলা শাসকের বাংলো থেকে দূরত্ব মাত্র কয়েকশো মিটার। তার মধ্যে এই ভয়ানক ঘটনা। মাটি খুঁড়ে উদ্ধার হয়েছে মহিলার দেহ। জিম ট্রেনারের হাতে শেষ হতে হয়েছে ওই মহিলাকে। কাজ সেরে অভিযুক্ত জেলা শাসকের বাসভবনের কাছেই দেহটা মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এই জিম ট্রেনারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মহিলা বিবাহিত ছিলেন। তার স্বামী চাইছেন এই ঘটনায় সিবিআই তদন্ত হোক। এবার আপনাদের বলবো কোথায় ঘটেছে এই ঘটনাটা। ঘটনাটা ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের কানপুরে। সেখানে শনিবার জেলা শাসকের বাসভবন সংলগ্ন অফিসার্স কলোনির কম্পাউন্ড থেকে মহিলার দেহ উদ্ধার হয়েছে। জানা গিয়েছে মৃত মহিলার নাম একতা গুপ্তা, বয়স 32। 24শে জুন থেকে নিখোঁজ ছিলেন একতা। পুলিশ জানায় একতা নিখোঁজ হবার পর তার জিম ট্রেনার বিমল কুমার ওরফে সুবিমল সোনিও গা ঢাকা দেয়। একতার নিখোঁজ হবার পরই পুলিশের নজরে আসে যে তার জিম ট্রেনার পলাতক। তাই স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ তৈরি হয়। তার খোঁজেও তল্লাশি শুরু হয় এবং সে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। সোনির দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায় একতাকে শেষ করে দেহ পুঁতে রাখার জন্য জেলা শাসকের বাসভবনের কাছাকাছি জায়গা বেছে নেওয়া হয়। জেলা শাসকের বাসভবনের এত কাছে কেউ এমন কাণ্ড ঘটাবে, এটা সাধারণত কেউ ভাবতে পারে না। তাই এমন কড়া নিরাপত্তার মোড়কে মোড়া কম্পাউন্ডই বেছে নেওয়া হয়। একতার স্বামী ব্যবসায়ী রাহুল গুপ্তার অভিযোগ, প্ল্যানিং অনেক দিন থেকেই চলছিল। আগে থেকেই গর্ত করা ছিল। আর কেউ এর সঙ্গে যুক্ত, আরও কেউ এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বলে তার সন্দেহ হয়। মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে সিবিআই তদন্তের দাবি জানাবেন বলে জানান রাহুল। জানা গিয়েছে অভিযুক্ত সোনি গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামের জিম ট্রেনার ছিলেন। সেখানেই নিয়মিত যেতেন একতা। তার স্বামী রাহুল গুপ্তা 24শে জুন একটা এফআইআর দায়ের করেন। অভিযোগ করেন নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার দিন সোনি তার স্ত্রীকে সকালে জিমে যাওয়ার সময় অপহরণ করেছিল। সোনি একতাকে প্রোটিন শেক দেওয়ার নামে অন্য কিছু দিয়েছিল। সেই প্রোটিন শেক খাইয়েই একতাকে অপহরণ করে সে। আমাদের প্রতিনিধি সীমার চাওলা কথা বলেছেন মৃতার স্বামী রাহুল গুপ্তার সঙ্গে। কি উঠে এলো কথোপকথনে শোনাবো এবার। कानपुर में जिम ट्रेनर ने जिस महिला की हत्या करके डीएम कंपाउंड में उसे गाड़ दिया, उनके पति हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, जो कि सवाल उठा रहे हैं पुलिस थ्योरी पर और साथ ही साथ सीबीआई इंक्वायरी की भी डिमांड कर रहे हैं। राहुल, क्यों डिमांड कर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी की? जो इन्वेस्टिगेशन है उससे क्या संतुष्ट नहीं? सर, इन्वेस्टिगेशन तो जो उन्होंने करी प्रशासन ने, वो जो भी है ठीक है, मगर जो चीज़ है, जो वहाँ का गड्ढा खुदा होना, पहले से खुदा होना, ये एक दिन में तो गड्ढा खुदा नहीं होगा। 5 से 6 फीट गड्ढा खोदना इजी नहीं है, इजी टास्क नहीं है। क्योंकि जब हम अपने वाइफ के तलाश रहे थे, जब वो अपराधी लेके गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे जब गड्ढा खोदा जा रहा था तब 3 से 4 घंटे लग गए। तो ये कोई ईजी टास्क तो था नहीं। तो कहीं ना कहीं इसके साथ या तो कोई इन्वॉल्व है जिसने प्लानिंग करी पूरी और उसको अंजाम दिया कि ये चीज़ करनी है, और इसके साथ पूरा कहीं ना कहीं उस कंपाउंड में या कोई भी इन्वॉल्व जरूर है उसके साथ। हाँ, आपको क्या लगता है कि जो जांच आप मांग कर रहे हैं, किस एजेंसी से जांच मांग कर रहे हैं, उसमें क्या क्लियर हो पाएंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये जांच कराना चाहता हूँ कि सीबीआई जांच हो और इसकी निष्पक्ष जांच हो, कि जिससे कि जो और भी चीज़ें अगर खुलासे हों तो सामने आने चाहिए। कि मान लीजिए हो सकता है ये अपने ऊपर आरोप ले रहा हो कि ठीक है हम ले लो, चीज़ें आगे कुछ और भी हो सकती हैं, तो वो कहीं ना कहीं खुलना चाहिए ना। मान लीजिए आज मेरा घर खराब हुआ है, कल ऐसे ही लाखों घर हैं जो विश्वास करके जाते हैं और चीज़ें हो जाएं उनके साथ, तो क्या है? अगर अभी भी अगर प्रशासन या जो सूबे की मुखिया बैठे हुए हैं, जो योगी आदित्यनाथ जी नहीं वो करेंगे, तो क्राइम तो बढ़ता ही जाएगा दिन पर दिन। कौन आदमी कहाँ निकल पाएगा? किसी की बहू बेटी घर निकल ही नहीं सकती, बाहर ही नहीं निकल सकती। ये बताइए कि बात आ रही थी, पुलिस की बात कहनी है कि वो प्रेम प्रसंग का मामला था और उसके बाद इस पूरी हत्या हुई। आप इस फैक्ट से वाकिफ रखते हैं? सर देखिए, ये हमारा आदमी तो मर गया है, डेथ हो गई उसकी, वो उसने ख़त्म कर दिया।
कहीं कुछ नहीं। इन बातों में 1% की सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ अपने आप को बचाने का एक तरीका है कि अब तो वो है नहीं, ना वो कोई जवाब दे पाएगा, तो ये एक तरीका है बचाने का। प्रेम प्रसंग वहाँ होता है या तो एक लेवल होता है हर चीज़ का, यहाँ पे कोई लेवल ही नहीं है किसी चीज़ का। प्रेम प्रसंग किस तरह का? जब घर में सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, कहीं कोई समस्या नहीं है, घर की होलसेल इंचार्ज वो है, तो कहीं होने का मतलब ही नहीं है। ये प्रेम प्रसंग का तो ये एक मुद्दा ये जोड़ा गया, ये मनगणन है, ये सारी चीज़ें इसको क्रिएट किया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग था या उसकी वजह से था या उसने बोला, ये बहुत सी चीज़ें ऐसे निकल के आ रही कि उसका तिलक था फला, और तिलक भी नहीं था, 1.5 साल भर पहले उसकी शादी टूट चुकी थी, तो मतलब ही नहीं है कहीं कुछ। तो आपको क्या लगता है कि किस वजह से हत्या की और क्या पूरी मचा? ये सर इसकी प्री प्लानिंग थी पूरी कि अगर ये मेरी बातों को नहीं मानती है तो इनको हमें मारना है, और ये प्लानिंग इसकी बहुत समय से हमें लगता है कि 2-3 महीने 4 महीने से चल रही थी इसके दिमाग में। ये मेरी पत्नी भी नहीं समझ पाई क्योंकि विश्वास उसने जमा रखा था, प्रोटीन शेक देता था अपने हाथों से, वो सब करता ही था, बातचीत भी करता था, डाइट चार्ट भी, सारी चीज़ें वो करता ही था, बात भी होती थी आपस में, मैसेज भी डालता रहता था, सारी चीज़ें रहती थी। तो उसके दिमाग में था कि अगर इन्होंने हाँ किया तो ओके है, अगर ये ना करती हैं तो इनको सीधे मारना है, क्योंकि अगर ये मेरी नहीं तो वो सामने पूरा घर इसका खराब करना है। प्रोटीन शेक की आपने बात करी कि अपने हाथ से देता था, कहीं और भी उस तरीके की बातें सामने आ रही थी, क्या लगता है? प्रोटीन शेक सर ये देता था, इसकी एक सहेली भी थी, उन्होंने भी एक बार इसी सर से वहाँ पे जब मैं पूछा कि सर आप एकता को देते हैं, आप हम लोग को नहीं देते हैं, तो इन्होंने साफ डिनाई कर दिया कि ये आपके लिए नहीं, एकता मैम के लिए है खाली ये प्रोटीन शेक, किसी और को नहीं दिया? किसी और को नहीं। क्या आपको लगता है उसमें कुछ मिलाया या? उसमें भी सर मिलाया ही है, क्योंकि जिस दिन ये घटना हुई है, जिस दिन अपहरण का ये घटना लिखवाई है मैंने, उस दिन इनकी तबीयत खराब हुई, वहाँ का एसी नहीं काम कर रहा था, ये बाहर निकली हैं और उसके बाद ये घर नहीं आई क्योंकि तबीयत खराब थी। तो हो सकता है इसने ये भी कहा हो कि मैम आपकी तबीयत खराब हो रही, मैं आइए गाड़ी में बैठे रहिए, मैं आपको छोड़ दूँ। तो हो सकता है बैठ भी गई हो क्योंकि विश्वास इसने बना रखा था, क्योंकि 2-2.5 साल से वो बंदा जो जा रहा है वो विश्वास, जाहिर सी बात है विश्वास कर लेगा, बैठ जाएगा कि ठीक है छोड़ देंगे। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से डीएम कंपाउंड के अंदर एक्सेस कैसे मिल पाया और इतने वीआईपी एरिया में जाके इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने, आपको क्या लगता है क्या है इसकी? सर ये बहुत गहन चिंतन की बात है कि इतने जहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, मतलब जिला अधिकारी का आवास बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब एक नॉर्मल आदमी जा नहीं सकता, और जो जाता है ना तो एक एक चीज की एंट्री होती है, वहाँ घटना को अंजाम दे के फिर उसके बाद वहाँ गाड़ देना, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। ये अभी बिल्कुल एक मिस्ट्री की तरह है और अभी ये सॉर्ट आउट नहीं हुई है, इसको सॉर्ट आउट करना है। अभी तो बहुत सी चीजें खुलनी बाकी हैं, अभी तो खुलना है, अभी तो ये अपराधी पकड़ा गया, अभी ये बहुत सी चीजें आनी है इसके सामने, क्योंकि ये गड्ढा खोदना और ये सारी चीजें अगर वहां पे अगर कहीं भी खुदाई भी करेंगे ना तो आवाज। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন।